guys, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about the megalith culture and its characteristics. So इस वीडियो को हम पहले इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे. So let's start the video. First of all, you know that megalith culture is a culture in which big stones were used. Mega, which means large, and lith, which means stones. So large stones were used for making the graves or making the memorials for the commemoration of the passing out of the people or in the memory of the dead people. So first of all, let's talk about the burial practice in megalith culture. In megalith culture, there used to be two types of burial practices. One was fractional, that is the partial burial practice, and the next was complete, that is extensive burial practice. In partial burial practice, the selected bones of the dead person used to be buried in the grave. It seems that they used to leave the dead body in the open space where the flesh of the dead person was eaten by the birds or animals, and after that the rest of the bones were selected and placed into the grave. This burial practice, that is the fractional burial practice, was very frequent in megalith culture. Now let's talk about the complete, that is extensive burial practice. This was prevalent in some of the places like Nagarjunikonda, Maski, Adichanullur, etc. In complete burial process, the dead person was placed in the order of east to west, that is head toward the east and feet toward the west. In complete burial process, the corpse of the old males or females used to be buried in the grave which was dug in the ground. In the grave, the pottery, the implements were placed as the grave goods beside the corpse. Grave goods, what are the grave goods? So the earthenware vessels, iron implements, etc. were the great grave goods. These grave goods used to be placed either inside the grave beside the corpse or outside the grave beside the memorial. Right? Now let's talk about the corpse of small babies. So the corpses of small babies were completely buried after placing them into a pot, which is also known as urn. So this burial is also known as urn burial or pot burial, and the evidences of this are found in a place known as Chengalpattu, which is in Tamil Nadu. Now let's talk about the pottery of the megalith period or the megalith culture. So black red wares are found from almost every grave or memorial site and dwelling place of the megalith culture of South India. All interior places and neck part of the potteries are painted in black color, whereas the rest outer parts of the potteries are painted in red color. The important vessels of black red pottery traditions are shallow plates, deep bowls covered with knobs, small pot, big pots, etc. Let's talk about the iron implements of that time. So approximately 33 types of iron implements are found from the grave or memorial site and the dwelling place of the megalith culture of South India. Important iron implements are flat axes, spades, sickles, chisels, hatchers, knives, bridles of horses, and horseshoes, tridents, swords, daggers, etc. अब इन्हीं बातों को हम हिंदी में डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हमें पता है कि मेगालिथ का मतलब क्या होता है. ऐसा कल्चर जिसमें बड़े स्टोन्स का यूज़ किया गया है. ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते थे? ग्रेव्स बनाने में और मेमोरियल्स बनाने में. ठीक है, तो जो मेगालिथ कल्चर था उसमें जो दफनाने की जो प्रक्रिया थी, जो भी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया थी, वो दो तरह की थी. एक थी पार्शियल बरियल प्रोसेस, मतलब जिसमें आधी अधूरी बरियल किया जाता था, और एक थी कंप्लीट एक्सटेंसिव, मतलब जिसमें पूरी की पूरी बॉडी को बरी किया जाता था. ठीक है, सबसे पहले पार्शियल की बात करें, आप जो फ्रैक्शनल बरियल प्रोसेस है उसकी बात करें, तो उसमें क्या होता था, कुछ जो भी डेड पर्सन था उसकी कुछ हड्डियों को दफनाया जाता था. उसमें क्या करते थे वो, प्रोबेबली वो क्या करते थे कि जो डेड पर्सन है उसकी बॉडी को ओपन स्पेस में छोड़ देते थे. फिर क्या होता था, उस बॉडी को जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे उस समय, वो क्या करते थे, खा लेते थे. उसका फ्लैश जो मांस होता था और जो भी बोन्स बच जाते थे लास्ट में, उसको वो डिस्पोज ऑफ करते थे, उसको वो ग्रेव में दफना देते थे. ये बरियल प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हुआ है उस टाइम पीरियड में. अब अगर कंप्लीट मतलब पूरा बरियल प्रोसेस की बात करें, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी को ही वो दफनाते थे, ये कौन कौन सी जगहों पे इसके एविडेंस मिले हैं, तो नागार्जुनीकोंडा, मस्की, आदिचनुल्लूर, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे इसके एविडेंसेस मिले हैं. ठीक है, तो कंप्लीट बरियल प्रोसेस में क्या होता था, वो जो डेड बॉडी थी उसको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लिटा देते थे. मतलब ईस्ट डायरेक्शन में उसका हेड होता था, सिर होता था, और वेस्ट डायरेक्शन में उसके फीट होते थे.
इसमें वो क्या करते थे, जो भी बूढ़े मेल्स फीमेल्स होते थे उनकी बॉडी को एक ग्राउंड में डग किया, पहले ग्राउंड में खोदा ग्राउंड को, और उसमें वो दफना देते थे। ठीक है, इसमें वो मेनली क्या करते थे, बॉडी के साथ ग्रेव गुड्स भी रखते थे, मतलब जो साथ की चीज़ें होती थी उसको भी साथ दफनाते थे। अब इसमें क्या है, जैसे पोट्री हो गई, इम्प्लीमेंट्स होते थे उस समय के, आयरन के इम्प्लीमेंट्स, अर्दनवेयर वेसल्स होते थे, उसको वो साथ में दफना देते थे, या फिर वो क्या करते थे, या तो वो क्या करते थे ग्रेव में ही दफना देते थे, या फिर जो मेमोरियल बनाया होता तो उसके साथ वो उनको रख देते थे। ठीक है, अब बात करें जो बच्चों की कॉप्सेज होती थी, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होती थी उसको क्या करते थे, वो छोटे बच्चे में बेबीज़ जो होते थे तो वो क्या करते थे, एक पोट लेते थे, मतलब एक मटका सा लेते थे, उसमें डेड बॉडी को डाल के उस मटके को ही दफना देते थे, और इस बरियल प्रोसेस को पोर्ट बरियल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके एविडेंसेस कहाँ पे मिले हैं, एक चिंगलपट्टू नाम की जगह है तमिलनाडु पे, वहाँ पे इसकी एविडेंसेस मिले हैं अर्न बरियल यानी कि पोर्ट बरियल की। अब बात करें जो पोट्री थी मेगालिथ पीरियड की उसके बारे में, तो जो पोट्री थी उसमें ब्लैक रेड वियर्स मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे, जो भी इनकी ग्रेव्स होती थी और मेमोरियल साइट्स हैं वहाँ पे मिले हैं हमें। इनकी जो इंटीरियर पार्ट था और जो नेक का पार्ट था पोट्री का, उसको वो ब्लैक कलर में पेंट करते थे, और जो भी बच गया पोर्शन उसको वो रेड कलर में पेंट करते थे। ठीक है, जो ब्लैक रेड पोट्री के इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं वो किस तरह के, जैसे एक शैलो प्लेट, मतलब काफ़ी डूंगी प्लेट नहीं है, शैलो से प्लेट हैं, डीप बाउल्स, डूंगे सारे बाउल्स, कवर ऐसे नॉब्स जिससे कवर किया जाता था, ठीक है, चीज़ों को, स्मॉल पोर्ट्स, बिग पोर्ट्स, ये सारे पोट्री का पार्ट थे उस समय की। आयरन इम्प्लीमेंट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 33 तरह के आयरन इम्प्लीमेंट्स भी हमें मिले हैं, जो भी उनकी मेमोरियल साइट्स होती थी या फिर जो ग्रेव्स होती थी वहाँ पे, मेनली साउथ इंडिया में। तो इम्पोर्टेंट आयरन इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से मिले हैं, जैसे फ्लैट एक्सेस, स्पीड्स, सिकल्स, चीजल्स, हैचर्स, नाइव्स, ब्रिडल्स, स्वॉर्ड्स, डैगर्स और हॉर्स, ये सारी हमें आयरन इम्प्लीमेंट्स भी मिली हैं उस समय। सो ये थी बात मेगालिथ कल्चर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।